Today we're going to meditate on one of the 7 last words of Jesus. और आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 7 वचनों में से एक को याद करेंगे। In John 19 and verse 28, यूहन्ना 19 और उसके वचन 28 में Jesus, knowing that everything had now been finished, so that the scripture would be fulfilled, said, I am thirsty. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। Yes, the Almighty God who came in flesh, who has all the power to provide water for all the thirsty, said on the cross, I am thirsty. वह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर जिसके पास पूरी सामर्थ है कि हर एक प्यासे को वह पानी दे सके, उसने क्रूस पर यह कहा, मैं प्यासा He हूँ। wanted to go through the thirst of humanity. वो मानवता की प्यास से गुजरना चाहता था। He wanted to go through the suffering caused by thirst for all humanity. और पूरे मानवता में प्यास के कारण जो तकलीफ होती थी उसको जानना चाहता था, And he went through it. और वो उससे होकर के गुजरा। When Jesus was speaking to the woman at the well, जब प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पर स्त्री से बात कर रहे थे, in John chapter 4, यूहन्ना अध्याय 4 में, he said to the Samaritan woman, तो उसने उस सामरी स्त्री से कहा, If you had asked me, I will give you living waters. अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, And if you had partaken of the living waters that I would have given you, you will never thirst. और अगर तू उस जीवन के जल को जो मैं तुझे देता हूँ पीती तो फिर कभी प्यासी न होती। Jesus had the power to give the living waters which can quench the thirst of anyone in the world. यीशु मसीह में वो सामर्थ थी कि वह उस जीवन के जल को दे जो किसी भी प्रकार के प्यास को बुझाने की क्षमता रखता है। He suffered for it on the cross to produce that living water through his suffering for all humanity's thirst to be quenched. और इसीलिए क्रूस पर अपने दुखों के द्वारा वह पूरे मानवता के उस प्यास को बुझाने के लिए जीवन के जल को उत्पन्न करने से गुजरता है। He said these immortal words, I am thirsty, knowing that all was completed on the cross. और वो इन अमर वचनों को कि मैं प्यासा हूँ इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि अब क्रूस पर सब पूरा हो चुका है। The scripture says in John 19:28, यूहन्ना 19 और उसके वचन 28 में शास्त्र में लिखा है, knowing that everything had now been finished, Jesus said, I am thirsty. यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। The scripture says, when Jesus had received the drink, when he said he was thirsty, he went on to say, it is finished. शास्त्र कहता है कि जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ और उसने वो सिरका लिया, तब उसने कहा कि पूरा हुआ। And after he said it, he bowed his head down and gave up his spirit. और जब उसने ऐसा कहा उसके बाद सिर झुकाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। It is finished. वो पूरा हुआ। What was तो finished? क्या था जो पूरा हुआ? He had suffered all that was required to quench the thirst of all humanity. And then he said, now it is finished. जब उसने वो सारा दुख जो मानवता की प्यास को बुझाने के लिए आवश्यक था सह लिया, तब उसने उसके बाद कहा कि ये पूरा हुआ। What is the thirst that humanity has? वो कौन सी प्यास है जो मानवता की है? The first thing is, every man, every woman is longing and thirsty for forgiveness from their sin, to be free of the guilt of sin. तो जो पहली चीज है जिसके लिए हर एक स्त्री और पुरुष जो है आकांक्षा रखता है कि वह जो है अपने पाप के अपराध बोध से मुक्त हो जाए। So Jesus went to the cross, इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर गए, endured the pain of being guilty because of sin. और पाप के कारण से अपराधी होने के उस दर्द को उन्होंने सहा।
He allowed himself to be punished, उन्होंने अपने आप को दंडित होने दिया, to be beaten for the sins of every person in the world, ताकि संसार के हर एक व्यक्ति के बदले उसे मार पड़े, to be bruised ताकि वो चोटिल हो, for everyone's iniquities, हर एक के अधर्म के लिए वो कुचला जाए, to be wounded for the transgressions of everyone. और हम में से हर एक के अपराधों के निमित्त वह घायल किया जाए, To bear the price to receive the peace by being free from sin and guilt. और हर प्रकार के पाप और अपराध से मुक्त होने के कीमत को वो चुकाए। Yes, he paid the price through his sacrifice to receive forgiveness for the sins of every man, every woman in the world on their behalf. हाँ, हर एक व्यक्ति के पापों की क्षमा के बदले उसने अपने बलिदान के द्वारा वो कीमत चुकाई। And in Luke 23:34, और लुका 23:34 में he said the immortal words among the 7 last words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के 7 अमर वचनों में से उसने उस वचन को भी कहा, Father, forgive them. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, Forgive each man, each woman of their sins, हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को उनके पापों से क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। They know not what they do. हाँ, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Because of their sins, उनके पापों के कारण ही they have lost the garment of the glory of God, which was given to them during creation by God. वो उस महिमा के वस्त्र को जो सृष्टि के रचे जाने के समय परमेश्वर ने दिया था, खो चुके हैं। When Jesus asked for the forgiveness of the sins of the whole world on the cross, जब क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने सकल ब्रह्मांड के लोगों के पापों के लिए उस क्षमा को मांग लिया, the soldiers who crucified him took away his clothes, divided it up for themselves. तो जिन सैनिकों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था उसका बागा लेकर के उसको अपने बीच में बांट That's लिया। what the devil did when man lost his garment of God's glory because of sin. यही तो पाप के कारण से शैतान ने भी किया था, जब मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा के आवरण को खो दिया And था made them naked and open to punishment. और उन्हें नंगा करके हर प्रकार के दंड के लिए उन्हें सामने कर दिया। And Jesus went through that same agony. और प्रभु यीशु मसीह उसी दुख से होकर के गुजरे, But this time pleaded for the forgiveness of their sins to get back their garments of God's glory and लेकिन अब की बार righteousness. वो जो है प्रभु से ये याचना करता है कि उनके खोए हुए उस अंगरखे को अपने बलिदान के द्वारा उन्हें वापस Today, मिल as you जाए। are thirsting for forgiveness, my brother, my sister, my darling child, remember Jesus Christ cried for you to quench that thirst for forgiveness to come to you. याद रखें मेरे भाइयों, बहनों, जवानों और बच्चों कि आज प्रभु यीशु मसीह आपकी उस प्यास को कि आप वापस अपने उस महिमा के आवरण को पाए या दुख उठाए, Turn to Jesus. यीशु के पास वापस आए। He'll forgive all your sins as you call on the name of Jesus. जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे वो आपके हर एक पापों को क्षमा And करेगा adorn you with righteous life और आपको एक धार्मिकता के जीवन से संवारेगा to become his child. कि आप उसकी संतान बने। Let not your heart be troubled. आपका हृदय कदापि व्याकुल न हो। Secondly, दूसरी बात, every human being is longing to have freedom from loneliness. हर एक मनुष्य प्राणी एकाकीपन से आजाद होने की लालसा रखता है। The thirst to come out of loneliness and to be wanted, loved and cared for. एक प्यास कि वो एकाकीपन से बाहर निकले और ये महसूस करे कि कोई उनसे प्यार करता है, कोई उनकी चिंता करता That's है। why Jesus went through the agony of loneliness and forsakenness on the cross. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर एकाकीपन और भुलाए जाने के एहसास से होकर के He गुजरे। said, I must make a way for every human being to be free from loneliness, but to have security in this world through love of God.
और उसने कहा कि मैं एक रास्ता निकालूंगा कि संसार में हर एक एकाकीपन से बाहर निकाले और परमेश्वर के प्रेम को अनुभूति करे। Matthew 27:46. मत्ती 27 और वचन 46 में Jesus cried in a loud voice, यीशु जोर की आवाज के साथ कहता है, my God, why have you forsaken me? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? He said, Eli, Eli, lema sabachthani, उसने कहा, एली एली लेमा सबक्तनी, which means, my God, why have you forsaken me? जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों भुला दिया है? I'm so lonely, मैं बहुत ही एकाकी हूँ, so lonely. बहुत ही एकाकी। My friend, मेरे मित्र, that's what the world is crying. आज संसार यही कह करके रो रहा The है। actress Marilyn Monroe, एक हीरोइन जो मर्लिन मुनरो थी, she had the greatest admiration, was adored by even the presidents, by rulers, and could perform before the greatest of the greatest in the world. उनके भी बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और शासक, और वो किसी के भी सामने प्रदर्शन कर सकती थी। She was given company by the most powerful in the world. Everybody wanted her. और उनके साथ हमेशा संसार के बहुत ही ताकतवर लोग रहते थे, हर एक उनको चाहता था। But one day she committed suicide. एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। When they turned the pages of her diary, जब उन्होंने उसके डायरी के पन्नों को पलटा, she had constantly written day after day, I am lonely, I am lonely, I am lonely. तो उन्होंने पाया कि उसने दिन ब दिन अपनी डायरी में ही लिखा था, मैं अकेली हूँ, मैं एकाकी She हूँ। had millions to adore her, but she felt so lonely in her heart. उसको चाहने वाले लाखों थे, लेकिन हृदय से वो एकाकी थी। My friend, only the presence of God can satisfy a human being. मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर की उपस्थिति एक मनुष्य को संतुष्ट कर सकती है। Every man, every woman has been created in the image of God. हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है। But the man and woman fell to sin and were thrown into the company of the devil. लेकिन आदम और हवा ने पाप किया और वो शैतान की संगति में फेंक दिए गए। And today they are thrown into the company of the people who commit sin and follow the devil. और आज वे ऐसे लोगों की संगति में फेंक दिए जाते हैं जो पाप करते और शैतान के गुलाम हैं। They may be adored by these people who commit sin and who have the worldly glory as their भले ही God. पाप करने वाले ऐसे लोगों के द्वारा उनकी बड़ी प्रशंसा होती हो और वो इस संसार में देवों की तरह प्रशंसित Never होंगे, satisfy that human being. लेकिन वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। They are lonely because they don't have the company of the one who created them and in whose image they had been created. वो इसलिए एकाकी है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दी और जिसके स्वरूप में सृजे गए थे उसे खो दिया है। Jesus went through that agony on the cross for their sake. और उनकी खातिर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस दुख को सहते हैं। Darkness surrounded him on the cross. क्रूस पर अंधियारे ने यीशु को चहुं ओर से घेर लिया था। As the darkness caused by the pleasures of the world, the glory of the world, the prince of the world surrounded him, he went through the agony of loneliness that you and I go through in the world, and he shouted, my God, why have you forsaken me?" जब शैतान की लालसाओं के उस अंधियारे ने प्रभु यीशु को चहुं ओर से घेर लिया था, तो वो हमारे लिए पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। In Revelation 1:18, Jesus says, प्रकाशित वाक्य 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I was dead, मैं मर गया था, but now I am alive evermore. पर अब मैं सदा काल के लिए जीवित हूँ। I went through that death of loneliness, मैं एकाकीपन के उस मृत्यु से गुजरा, but I have come alive. लेकिन अब मैं जीवित आ चुका On हूँ। the third day I rose up from the dead. तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठा, I am alive. मैं जीवित हूँ। And he says in Revelation 3:20, और प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है, my child, मेरे बच्चे, you need not be lonely. तुम्हें अकेला नहीं होना है। You need not suffer being alone in the world with no one to trust your life with.
इस संसार में तुम्हें किसी के बगैर अपने जीवन में अविश्वास के साथ जीना नहीं है। I come to you now. मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, Hear my voice. मेरी आवाज को सुन। I want to come in and live with you. मैं अंदर आकर तेरे साथ रहना चाहता हूँ। Open your heart for me. मेरे लिए अपना हृदय खोल। I will come in मैं अंदर आऊंगा and I will eat with you. I will give you company. और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तुझे संगति दूंगा। I'll be with you always. मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। I'll never leave you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा I'll never forsake you. और न कभी त्यागूंगा। Today open your heart to Jesus. आज अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलिए। He went through the suffering of loneliness for you on the cross and overcame it and has made a way for you to have His company in the world. आपके एकाकीपन के कारण से वो उस क्रूस पर दुख और हर एक पीड़ा को सहा और आपके लिए एक रास्ता निकाला कि आप इस संसार में एक संगति को पाएं। In 2 Corinthians 6:18, दूसरा कुरिन्थियों 6 और वचन 18 में God says, I'll be a father to you. परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए एक पिता होऊंगा You'll be my son. और तुम मेरे बेटे होगे, You'll be my daughter. तुम मेरी बेटियां होंगी। What a great joy. कैसा महान आनंद है। You have hope in Jesus. यीशु में आपके लिए एक आशा है। The third thirst that he quenched was the thirst for heaven that every human being has. और तीसरी प्यास जो उसने बुझाई वो थी स्वर्ग की प्यास जो हर एक व्यक्ति को होती है। In Luke 23:43, लूका 23 और उसके वचन 43 में हम देखते हैं, Jesus said to the man who was crucified by his side, a thief who repented. प्रभु यीशु मसीह अपने बगल में जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसने पश्चाताप किया, ये कहा, Truly, I tell you, today you will be in paradise with me. मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। You'll be with me in paradise. तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, You'll be with me. तू मेरे साथ होगा। I will open heaven for you. मैं तेरे लिए स्वर्ग को खोलूंगा। What a great joy. कैसा महान आनंद है। Jesus said in John 14:6, यूहन्ना 14 वचन 6 में प्रभु यीशु ने कहा, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। Even today, my friends, आज के दिन भी मेरे प्रिय मित्रों, in Hebrews 10:19, इब्रानियों 10 वचन 19 में the Bible says we have confidence to enter the most holy place, that's heaven, by the blood of Jesus. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम उस सबसे पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। The place where God lives. वहाँ जहाँ ईश्वर रहता है। You can enter into heaven because of the blood shed for you by Jesus Christ, with which He has paid the price for you to have a ticket to go to heaven. जी हाँ, आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण से, जिसने अपने लहू के द्वारा से आपके लिए उस कीमत को चुकाई और आपको स्वर्ग का टिकट दिया है। Open your heart to Jesus, अपना हृदय प्रभु यीशु के लिए खोलिए and He will make the way for you to go to heaven. और वो आपके स्वर्ग जाने की राह को प्रशस्त करेगा। When you close your eyes on earth, जब आप इस पृथ्वी पर अपनी आंखें मूंदेंगे, heaven will open for you. आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। With that assurance, you can die in the world. इसी निश्चयता के साथ आप इस संसार को छोड़ सकते हैं। No fear, कोई भय नहीं, no anxiety. कोई चिंता नहीं। Your thirst for heaven has been quenched through Jesus Christ, who went through death and rose up in glory. स्वर्ग को पाने की लालसा और प्यास को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा अपने उस महिमा को देकर आपके लिए लाया है। And fourthly, और चौथी बात, every human being longs for a family, for love through a family in this world. इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है परिवार के प्रेम की लालसा रखता है। Most of the children who are forsaken and abandoned grow up as rebels and many times antisocial elements. अधिकांश बच्चे जिन्हें छोड़ दिया जाता है, जिनकी उपेक्षा होती है, वे संसार में विद्रोहियों की तरह और ऐसे ही रूप में बढ़ते हैं, Because they have never tasted love. क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। Even when people show them love, they suspect them. जब लोग उन्हें प्रेम दिखाते हैं तो भी उन पर शक करते हैं And they feel they are there only to exploit them.
और उन्हें लगता है कि वो केवल उनका शोषण करेंगे। They hate others. वे दूसरों से घृणा करते हैं। But in John 19:26 and 27, लेकिन यूहन्ना 19:26 और 27 वचन में Jesus paid the price on the cross to make every human being to love each other and to blend as a family, to care for each other. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वह कीमत चुकाई कि इस संसार का हर एक परिवार एक दूसरे से मिलकर और प्रेम के साथ रहे। When Jesus saw his mother from the cross, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपनी माता को देखा and his disciples standing nearby her, और अपने चेलों को जो उसकी माता के पास खड़े थे, he said, तो उसने कहा, "Woman, here is your son." हे स्त्री, देख यह तेरा पुत्र है। And he looked at his disciple John and he said, "Son, here is your mother." और उसने अपने चेले यूहन्ना को देख करके कहा, हे बेटे, ये तेरी माता है। John, take my mother as your mother. यूहन्ना, मेरी माँ को अपनी माँ के रूप में तू घर ले जा। He made a way for them to be cared for in the world as family. परिवार के रूप में संसार में चिंता करने के लिए उन्होंने उसके लिए राह निकाली। John 19:26-27 says so. यूहन्ना 19:26 और 27 यही बताता है। Even today, my friend, in Colossians 1:20, the Bible says, आज भी कुलुस्सियों 1:20 में मेरे मित्रों बाइबल हमें कहती है, Jesus reconciled all in heaven and on earth to himself by making peace through his blood shed on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाए अपने लहू के द्वारा से इस पृथ्वी और स्वर्ग में हर एक को अपने साथ मेल मिलाप कर And लिया। in Zephaniah 3:9, और सपन्या 3:9 में he gives a pure language, a language of love, to all people who serve him to be together in serving the Lord. वो हर एक उन लोगों को जो उसके सेवा करने के लिए आते हैं, प्रभु की सेवा के लिए वो एक प्रेम की भाषा को देता है। He quenched the thirst for having a family in the world. इस संसार में परिवार की चाह की प्यास को उसने बुझाया है। In Psalm 68 and verse 8, the Bible says, भजन संहिता 68 और उसके वचन 8 में बाइबल बताती है, He sets the lonely in families. वह एकाकी को परिवार में बसाता है। Jesus quenched that thirst. यीशु ने उस प्यास को बुझाया। He will give you a family. वो आपको एक परिवार देगा। He will be a father, but he will give you family members in the world and build your life. वो आपके लिए एक पिता होगा, लेकिन आपके लिए वो इस घर और परिवार के सदस्यों को And देगा, that'll give you security on earth. और वही आपको इस संसार में सुरक्षा प्रदान करेगा। And fifthly, Jesus paid the price for the thirst of every human being to have God in control of their spirit. और पांचवी चीज, अपनी आत्मा में परमेश्वर के नियंत्रण की हर एक व्यक्ति की प्यास को उसने बुझाया है। In Luke 23:46, Jesus said, लुका 23 और 46 में यीशु ने कहा, Father, into your hands I commend my spirit. और ऐसा कह करके उसने अंतिम सांस ली। But then Jesus made a way for Satan's power over the spirits of people to be broken. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के नियंत्रण को लोगों की आत्माओं पर से तोड़ने के लिए एक रास्ता निकाला। He went to the cross, and according to 1 John 3:8, वह क्रूस पर चढ़ गया और पहला यूहन्ना 3:8 के अनुसार he destroyed the power of Satan over the spirits of human beings. उसने शैतान के मनुष्यों की आत्माओं के ऊपर उस अधिकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। Hebrews 2:14-15 says, since every human being has flesh and इब्रानी blood, 2:14-15 कहता है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है मांस और लहू का बना हुआ है, Jesus also became flesh and blood, इसलिए यीशु भी हमारे लिए लहू और मांस बन गया, so that he might taste death for everyone. ताकि वो हर एक के लिए मृत्यु को चख ले, And he would break the power of Satan, who held the power of और death, वो शैतान के उस सामर्थ को कि जिसने मृत्यु को अपने अधिकार में रखा था, and to खत्म free कर दे, them from the fear of death. और उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। He destroyed the powers of Satan on the cross and delivered every spirit of every man, every woman from the control of Satan.
उसने मृत्यु के उस अधिकार को क्रूस पर हरा दिया और हर एक स्त्री और पुरुष की आत्मा को शैतान के नियंत्रण से मुक्त किया। And he made the way for God to have control over the spirit of everyone on earth. और पृथ्वी पर हर एक आत्मा पर परमेश्वर के नियंत्रण के लिए राह निकाली। But it is in the hands of a human being either to hand over their spirit to God or to Satan. लेकिन ये तो हर एक स्त्री और पुरुष के हाथ में है कि वो अपने प्राण, अपनी आत्मा शैतान को देंगे या परमेश्वर को। And sixthly and finally, और छठवीं और अंतिम बात, Jesus paid the price on the cross to quench the thirst of everyone for them to have the Holy Spirit in them. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक के लिए कीमत चुकाई अपने प्राण देने के द्वारा कि वो पवित्र आत्मा The को Bible पाए। says, until Jesus Christ sacrificed himself on the cross, the Holy Spirit was not yet given to the people. जब तक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए तब तक पवित्र आत्मा जो था वो दिया नहीं गया था। Yes, Jesus suffered and gave up his spirit to God हाँ, यीशु ने दुख उठाकर अपनी आत्मा to परमेश्वर को quench सौंपी every human being's thirst to receive God's spirit in him or her. ताकि हर एक स्त्री और पुरुष के उस आत्मा की प्यास को कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए वो पूरी तरह संतुष्ट करे। When the Holy Spirit comes into a person, और जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आता है, according to Acts 10:38, God remains with that person. तो प्रेरितों के काम 10:38 के अनुसार परमेश्वर उसमें हमेशा के लिए बना रहता है And that person is transformed into the image of और वो God. व्यक्ति परमेश्वर की सदृश्यता में बदल जाता है। 2 Corinthians 3:18 says so. दूसरा कुरिन्थी 3:18 यही कहता है। Jesus went through the thirst of every human being on the cross प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की प्यास को बुझाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए and opened the way for them to have God's living water in their और life. उनके लिए उस रास्ते को खोला कि वे परमेश्वर के जीवन के जल को अपने जीवन में पाए। You can have your thirst quenched through Jesus today. आज आप यीशु के द्वारा अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। Turn your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु की ओर मोड़े। Father, पिताजी, you are the living water, Lord Jesus. प्रभु यीशु आप ही जीवन का जल हैं। Enter into everyone हर एक के अंदर में आप प्रवेश करें and fill everyone with thy Holy Spirit. और हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। Let their thirst be quenched and let them have security on earth and security after death. ताकि वे तृप्त हो जाएं और इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में वो सुरक्षित रहें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। You are their security. आप ही उनकी सुरक्षा हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।